You are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point, and I have selected the very important question related with the differential calculus, which will be very important for you. And definitely you will get success if you will see, you will watch the Math Success Point YouTube channel. Okay? और my dear student, वीडियो देखने के बाद कम से कम like my videos, share my videos, press the bell icon so that my each and every video of the smart solution will reach to you as soon as possible. Subscribe my channel. Let me start the solution of the question. देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इधर उधर पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको कंसंट्रेशन के साथ नहीं करोगे तो देन यू विल कमिट द मिस्टेक. ओके, लेट मी स्टार्ट द सॉल्यूशन. e to the power x plus e to the power y, it will be equal to e to the power x plus y. My dear student, इसको हम ब्रैकेट करेंगे e to the power x into e to the power y. Okay, e to the power x plus e to the power y, and e to the power x, you see, it will be equal to e to the power x, e to the power y minus e to the power y. I transpose it from left side to right side. E to the power y, I will take common, e to the power x minus 1 and e to the power x. देखिए इसमें मैं क्या करूंगा, e to the power y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, e to the power x अपॉन e to the power x minus 1. My dear student, लेकिन इसमें एक रिजल्ट मैं और निकालूंगा which I will use at last of the solution of the question. Without that one, it is very difficult to find out the solution of the question. देखिए इसका एक रिजल्ट और निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, e to the power x minus 1 की वैल्यू निकालूंगा, e to the power x अपॉन e to the power y. It will be equal to e to the power x minus 1. यानी कि इसकी वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. तो क्या करेंगे भाई, e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर y इटसेल्फ एंड dy अपॉन dx. y का फिर से कर दीजिए. देखिए इसको कोसेंट फॉर्म में हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, e टू द पावर x minus 1 होल स्क्वायर. e टू द पावर x minus 1, डिनोमिनेटर you write as it is, differentiation of the numerator e to the power x minus numerator you write as it is, differentiation of the denominator e to the power x minus 1. देखिए मैंने पूरा डिटेल में लिखा है इसको, e to the power x minus 1 into e to the power x itself, it's a differentiation, minus e to the power x into e to the power x divided by e to the power x minus 1 square. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. देखिए e to the power x को मल्टीप्लाई कर लीजिए, e to the power x into e to the power x कितना होगा भाई, देखिए e to the power x into e to the power x, it will be equal to e to the power x plus x, it will be equal to e to the power 2x. तो ये हमारे पास आ जाएगा e to the power 2x minus e to the power x. सिमिलरली यहाँ पर भी e to the power 2x अपॉन e to the power x minus 1 होल स्क्वायर. माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी कैंसिल, कितना आ गया, e to the power x अपॉन e to the power x minus 1 होल स्क्वायर. Most important question, it is the value of what, e to the power y or dy upon dx. अब e to the power y dx, it will be equal to, my dear student, you must have to see, e to the power x upon e to the power y, e to the power x minus 1 whole square. It will be equal to negative e to the power x into e to the power minus y. I will take it, this one, from denominator to numerator. It will be equal to e to the power x minus 1 whole square. My dear student, you must have to see, it is e to the minus. In place of e to the power x, I will take e to the power x minus 1. Okay? देख लीजिए भाई, यहाँ पर इसको चेंज करूंगा मैं, यहाँ पर it is its value. Then it will be minus e to the power x minus y upon e to the power x minus y whole square. ओके, थोड़ा सा चेंज करूंगा, e to the power x minus y अपॉन e to the power x minus y into e to the power x minus y. एक तो कैंसिल हो जाएगा ना इनमें से, तो कितना आ गया, 1 अपॉन e to the power x minus y. इसको भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको न्यूमरेटर में ले लेते हैं, e to the power minus x minus y. ओके, e to the power y minus x, my dear student, it is dy upon dx. इसको लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, dy upon dx plus e to the power y minus x, it will be equal to 0. My dear student, it is the required result of it. It is the required result, you see, which will be help to prove. My dear student, let me take some more questions which are very important. Find the value
of dy upon dx at x is equal to pi by 4। इस पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए भाई सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी, देखिए y की वैल्यू निकाल देता हूं मैं। y विल बी इक्वल टू व्हाट, 10 पाई बाई 4 टू द पावर 10 पाई बाई 4 टू द पावर 10 पाई बाई 4 पाई बाई 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। माय डियर स्टूडेंट, मुझे ये बता दीजिए आप 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 टू द पावर 1 और टू द पावर 1 अप टू इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट्स वैल्यू विल बी 1। 1 टू द पावर 1 टू द पावर 1, its value will be 1. Y will be 1. Whenever we will be required the value, we will use it. Y will be equal to 1. Okay, let me take one thing now. Most important solution. Y is equal to 10x to the power 10x to the power 10x to the power 10x and so on up to infinite. My dear student, मुझे ये बता दीजिए इसके स्थान पे मैं क्या रख दूं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू वाई। तो क्या रखेंगे हम, 10x टू द पावर y, यानी कि y इज इक्वल टू दिस वन। नाउ वी अप्लाई, आई हैव चेंज इट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। अप्लाई द मेथड टेकिंग log on both the sides, taking log on both sides। most important question, it will be equal to what, log y will be equal to y log 10x। Most important thing, differentiate on both the sides, differentiating with respect to x। My dear student, 1 upon y dy upon dx, it will be equal to, देखिए ये तो फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा और ये हो गया सेकंड फंक्शन। ओके, दैट इज फर्स्ट फंक्शन और एक हो गया सेकंड फंक्शन। नाउ यू विल हैव टू सी y को एज इट इज रख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन 1 upon 10x, 10x का फिर से कर दीजिए sec स्क्वायर x प्लस log 10x, log 10x को एज इट इज रख लीजिए dy upon dx। माय डियर स्टूडेंट, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ इट। ओके, और अब हम क्या करेंगे, इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू, अब जहां पर देखिए dy अपॉन dx है उसको मैं एक साथ ले लेता हूं। देखिए यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा और y की वैल्यू 1 लेंगे भाई, y की वैल्यू यू विल हैव टू कीप इन माइंड, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन y और dy अपॉन dx। ओके, दिस थिंग माइनस log 10x dy upon dx। ओके, इट विल बी इक्वल टू, you see y and sec square x, sec square x upon 10x, this is the thing। okay, it will be in the right side, it will be in the right side। okay, and it will be, my dear student, dy upon dx, let me take it out, 1 upon y minus log 10x, it will be equal to y sec square x upon 10x। माय डियर स्टूडेंट, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। इसको क्या करेंगे, इसको मैं चेंज कर देता हूं। देखिए sec स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर x और यहां पर आ जाएगा 10x, कितना हो जाएगा sin x अपॉन cos x। ओके, इट विल बी इक्वल टू y, देखिए cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा और इसमें हो जाएगा 1 अपॉन sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x। ओके, y and let me take it as it is, it will be, I have taken it common, then y sec square x upon 10x। okay, let me take the LCM of it, dy upon dx, it will be 1 minus y log 10x upon y, it will be equal to y sec square x upon
10x. My dear student, it will be equal to y. I will take over here. It will be y square and sec square x upon 10x, and it will be 1 minus y log 10x. My dear student, I got dy upon dx at x is equal to pi by 4. You will have to find out the value of it. जहां भी x है वहां पर पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y का स्थान पे क्या रखेंगे 1. मैंने पहले बताया था ना 1 है इसकी वैल्यू, और sec स्क्वायर पाई बाई 4. Similarly here tan pi by 4 which will be 1, and 1 minus it will be equal to how much? Y, that is 1, y1 and log tan pi by 4, pi by 4. My dear student, tan pi by 4 is 1, okay, and log 1 ये जीरो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर. It will be equal to 1 square means 1, cos 45 1 upon root 2, sec 45 root 2 और root 2 square, root 2 square आ जाएगा यहाँ पर. Okay, it will be what? tan 45 1 divided by 1 into 1 minus 0. It will be equal to 2 only. My dear student, its value is 2. The value of dy upon dx will be 2. dy upon dx at x is equal to pi by 4. We got by the value of it. Its value will be pi by 4. At x is equal to pi by 4, its value will be 2. Most important question. That is why you see, my dear students, such questions generally asked in the different types of examination. Let me take the solution of a very, very important question. Generally, students feel difficulty in such questions. Okay, let me take the question. X की वैल्यू एक तो क्या हो सकती है, 1 से लेस देन हो सकती है, 1 से ग्रेटर देन भी हो सकती है, इक्वल टू 1 भी हो सकती है, एक लेस देन 2 हो सकती है और एक ग्रेटर देन 2 हो सकती है. ओके, तो इसलिए सारी वैल्यू निकालेंगे. दो वैल्यू, 2 पॉइंट पर हमको वैल्यू निकालनी है. We will have to find out its value at 2 points, 1 and 2. तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहीं पर लिख देता हूं जिससे आपको पता लग जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी. x minus 2 इज इक्वल टू, वैल्यू निकाल करके यहां रखूंगा भाई. यू विल हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर. एक तो वैल्यू हो सकती है हमारे पास इफ x इज लेस देन 1, ठीक है, यहां पर निकालूंगा. एक हो सकती है हमारे पास x इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. एक हो सकती है हमारे पास में क्या, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. दीज वैल्यूज. ओके, अब यहां पे मैं वैल्यू निकालूंगा और यहीं पर पुट अप करूंगा. देखिए x की वैल्यू क्या करूं, लेस देन 1. फर्स्ट केस, नंबर 1 केस, x इज लेस देन 1. फर्स्ट केस ही है ना. हमें क्या चाहिए सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ x minus 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x minus 1. अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं है कैसा होगा. ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, हमें क्या पता क्या होगा. प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. प्रैक्टिकली बताऊंगा एक एक चीज, इसलिए ध्यान से देखिए. x लेस देन 1, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x minus 1. तो इसमें हम x minus 1 दोनों साइड में सबट्रैक्ट कर देता हूं. देखिए क्या हो जाएगा, x minus 1 लेस देन 1 minus 1, तो क्या होगा, x minus 1 ओके लेस देन 0. फर्स्ट केस में देखिए x की वैल्यू किसकी हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इस केस में, फर्स्ट केस में. ठीक है, अब इसी में एक चीज और लूंगा मैं. देखिए x लेस देन 1. अब हमें 2 की भी चाहिए. अब 2 माइनस कर देता हूं, 1 minus 2. देखिए x minus 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1. यानी कि x minus 2 की वैल्यू -1 से लेस देन होगी. दैट इज व्हाई इट्स वैल्यू आल्सो नेगेटिव. ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों के इस केस में. तो क्या हो गया भाई, -x minus 1 और -x minus 2, दोनों की वैल्यू मैंने नेगेटिव ली हुई. ठीक है, अब एक केस और लेना मुझे. कौन सा केस लेना, ये तो दोनों की वैल्यू मैंने नेगेटिव रखी भाई. सेकंड केस में, सेकंड केस में प्रैक्टिकली निकालूंगा, इसलिए पहले ही बता दिया मैंने. x की वैल्यू कहां पर लाई कर रही है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी और 2 से लेस देन होगी. ठीक है, इसमें देखते हैं. चलिए x की वैल्यू क्या है, लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1. ठीक है, अब मैं सबसे पहले देखो मैं 1 ले लेता हूं. अच्छा, इस केस में क्लियर ले लीजिए.
मैं 1 करूंगा, सब 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं x माइनस 1 और यहां पर भी माइनस 1, तो क्या हो जाएगी 0 x माइनस 1 और 1, यानी कि क्या होगा x की वैल्यू 1 से ज्यादा है और 0 से ज्यादा है, नेगेटिव तो नहीं होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सेकंड केस देखिए, x इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1। अब क्या करेंगे, 2 चाहिए ना हमें, 2 भी तो चाहिए ना, इसकी वैल्यू भी तो देखनी ना हमें। इसमें क्या चाहिए भाई हमें 1 माइनस 2, देखिए x माइनस 2, 2 माइनस 2, एकदम प्रैक्टिकली बताऊंगा भाई, x माइनस 2 लेस देन, x इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखिए, नेक्स्ट केस प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ऐसे वर्बली तो हम लिख करके ऐसे ही कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। थर्ड केस में देखिए, x इज लेस देन 2, सॉरी x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 में सबसे पहले इसको देख लो, x माइनस 1, 2 माइनस 1, x माइनस 1 ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव हो जाएगी, x माइनस 1 पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड x इज ग्रेटर देन 2, x माइनस 2, 2 माइनस 2, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है ना, वही कंडीशन ली है मैंने, x माइनस 2 की वैल्यू ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, x माइनस 2। तो हमारे पास माय डियर स्टूडेंट ये फंक्शन आ गए, मैंने रफ कैलकुलेशन करके आपको बता दिया, ये फंक्शन आ गए हमारे पास में, fx की वैल्यू क्या क्या आ गई देखिए, नेगेटिव, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस x प्लस 1 और माइनस प्लस 1 माइनस x और प्लस 2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई, x माइनस 1 और माइनस x प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई 2x माइनस 3, ठीक है। इफ x इज लेस देन 1, इफ x इज लेस देन 2 greater than or equal to 1, if x is greater than or equal to 2। माय डियर स्टूडेंट, अब फाइनल वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ इसकी, दैट विल बी, मैंने पहले ही बता दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कितनी हो गई x की वैल्यू, माइनस 2x हो गई भाई, माइनस 2x तो इसकी आ गई प्लस 3, इस फंक्शन की वैल्यू, और x से x कैंसिल हो गया ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, देख लीजिए, ये आ गया इफ x इज लेस देन 1, और ये आ गई इफ x इज किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और ये आ गई क्या 2x माइनस 3। माय डियर स्टूडेंट, इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू बता दी मैंने, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केस एट x इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट, कंटिन्यूटी प्रूव करनी है ना, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दीज 2 पॉइंट्स, तो लेफ्ट लिमिट देखिए x टेंड्स टू 1 fx मींस लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब फंक्शन देखिए ये आ गया भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन आ गया हमारे पास माइनस 2x प्लस, दिस इज द फंक्शन, ओके। लेट मी पुट, थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं, जो मैंने पहले बताया, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, इफ x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, h टेंड्स टू 0 माइनस 2 और 1 माइनस h इन प्लेस ऑफ x प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, लिमिट लेंगे तो माइनस 2 दैट विल बी 1, इट्स वैल्यू विल बी 1, देख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 प्लस 2h और प्लस 3, ओके, इट विल बी माइनस 2 प्लस 3, इट विल बी इक्वल टू 1, पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट पॉजिटिव 1 आ गई भाई। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं, व्हाट विल बी द राइट हैंड लिमिट, ओके। राइट हैंड लिमिट में मैं यहीं पर इसी को चेंज करूंगा, केवल राइट हैंड लिमिट प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई ना हमारे पास में, देखिए फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इट इज 1, देख लीजिए पहले रखी हुई है यहां पर, यू सी, इफ x इज ग्रेटर देन 1
देखो 1, इट्स वैल्यू इज 1, वेरी सिंपल। ओके, अब आप ये देखिए व्हाट डज इट मीन, x इज इक्वल टू 1 पर भी 1 ही वैल्यू है, बट fx कितना है भाई इस पे 1, एट 1 f1 की भी वैल्यू कितनी आ गई, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन fx और इज इक्वल टू f1, सारे के सारे 1 है ना, देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई, राइट हैंड लिमिट 1 आई, f1 भी 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। माय डियर स्टूडेंट फील के इस तरह के क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन मैंने इसको इतना इजी बना दिया, सबसे पहले यही फंक्शन की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, और उसके बाद करना उसको सॉल्यूशन सॉल्व करना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ा ही है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, किस पर निकालेंगे, 2 पर निकालते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2, कितना सिंपल क्वेश्चन है, fx फंक्शन यहां से मिल जाएगा भाई, x इज लेस देन 2, देखिए 1 आ जाएगा, x टेंड्स टू 2, 1 आ गया ना, x की वैल्यू तो 1 ही आएगी, आप करेंगे। राइट हैंड लिमिट ले लीजिए 2 पर, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, क्योंकि फंक्शन एक बार आपने चेंज कर लिया ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, अब पॉजिटिव है ग्रेटर देन 2, तो ये फंक्शन आ गया हमारे पास में 2x माइनस 3। लेट मी टेक, क्योंकि हमें यही वैल्यू देखनी थी, अब मैं इसको हटा देता हूं, यू विल हैव टू सी, पुट x इज इक्वल टू कितना भाई 2 प्लस h, इफ x टेंड्स टू 2 h टेंड्स टू 0, भाई x का स्थान पर 2 रखोगे ना, 2 माइनस 2 h विल बी इक्वल टू 0, h टेंड्स टू 0, कितना आ गया, लिमिट h tends to 0, okay, and 2 plus h और माइनस 2, अब इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, देन h tends to 0, 2 into 2 4, that will be 4 plus 2h minus 3, take the limit, its value will also be, its value will be 1, 4 minus 3 1, ये तो 0 हो जाएगा हमारे पास में, that will be 1। देखिए मैं लिख देता हूं पूरा, 2 into 0 minus 3, it will be equal to 1, और फिर therefore फंक्शन क्या है हमारे पास में, माय डियर स्टूडेंट यू सी फंक्शन था हमारे पास में 2x minus 3, और इसकी 2 पर वैल्यू देख लीजिए, 2 पर कितनी है, 2 into 2 minus 3 is equal to 4 minus 3, that is equal to 1, ये भी 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास में, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, the function is continuous at 2 also, my dear student, left hand limit देखिए, left hand limit is equal to limit x tends to plus fx is equal to f2, all are same, 1 1, function is continuous, f is continuous at x is equal to 2 also. The function is continuous at this function, most important function I have selected, my dear student, that is why you must have to see carefully. Let me take one more question. My dear student, बहुत important question है, इस तरह के दुनिया भर के questions आपके आते हैं। Let me take put, देखिए 2 तरह से पुट करूंगा, एक तो u ले लूंगा x to the power y, एक करूंगा मैं क्या v हो जाएगा y to the power x, ठीक है। नाउ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, u plus v will be equal to a to the power b, डिफरेंशिएटिंग इट, हमेशा ऐसे ही करना, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करना है, कितना आ जाएगा, du upon dx प्लस dv upon dx, और ये तो कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, माय डियर स्टूडेंट, du upon dx की वैल्यू आप निकालेंगे, you will have to find out the value of dv upon dx from these two functions, then you substitute here, then only you will get the value of it, final। okay, let me take first of all, first case क्या है भाई, if अब ये भी पुट किया ना, u is equal to x to the power y, taking log on both sides, log
u इज इक्वल टू, देखिए y log x, log ले लिया मैंने, ये फर्स्ट फंक्शन होगा हमारा और ये सेकंड फंक्शन होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई, देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन यू और du अपॉन dx, हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी है, यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट विल बी इक्वल टू y, x की वैल्यू 1 अपॉन x, log x है ना, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x को एज इट इज रख लीजिए और dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, y का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए भाई विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो dy अपॉन dx आ जाएगा, क्योंकि dy अपॉन dx की ही वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, देखिए भाई, ठीक है, तो du अपॉन dx मैं यहीं पर पुट अप कर देता हूं इसको, यहां पर इसकी वैल्यू निकाल देता हूं, du अपॉन dx विल बी इक्वल टू u y अपॉन x प्लस log x इंटू dy अपॉन dx। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x टू द पावर y अपॉन x प्लस log x इंटू dy अपॉन dx, ठीक है, क्योंकि हमें तो dy अपॉन dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ना, बाद में निकालेंगे इसकी वैल्यू, अभी एक तो हमारे du अपॉन dx की वैल्यू थी यार, अभी हम लोग एक फंक्शन और लेते हैं ना, अभी तो एक फंक्शन और है हमारे पास में, देखिए इसको मैं यहां लिख देता हूं भाई, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसलिए देखिए यू विल हैव टू सी, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx, देखिए v इज इक्वल टू y टू द पावर x, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, log लेंगे, log v इज इक्वल टू x log y, x log, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग विद रेस्पेक्ट टू x। माय डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन लेंथी है, 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये एग्जामिनेशन में, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक ही क्वेश्चन में दुनिया भर के क्वेश्चन सेंस के अंदर सो मेनी क्वेश्चंस आते हैं, 1 अपॉन v और dv अपॉन dv अपॉन dx भी तो चाहिए ना हमको, इट विल बी इक्वल टू x should keep as it is 1 upon y और dy upon dx, okay, plus log y you keep as it is, differentiation of x, that is 1, कितना हो जाएगा भाई, v x upon y dy upon dx plus log y, it will be equal to, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y to the power x upon y dy upon dx plus log y, that is the value of dv upon dx, dv upon dx की वैल्यू आ गई है हमारे पास में, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों वैल्यू इसके अंदर, नाउ यूज करेंगे इसको, देखिए मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट, du upon dx plus dv upon dx, it will be equal to what, 0, its value will be 0, okay, my dear student, you must have to see the solution of the question, that is du upon dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, चलिए क्या है भाई, x टू द पावर y एंड y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx, ठीक है, ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, देखिए प्लस dv अपॉन dx की वैल्यू देखिए क्या है, y टू द पावर x इन द ब्रैकेट x अपॉन y और dy अपॉन dx प्लस log y, नथिंग एल्स, इट विल बी इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, इनकी वैल्यूज को केवल हमको अरेंज करना है, ठीक है, दीज वैल्यूज यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशंस वी विल टेक, देखिए अब इनको मैं रीअरेंज करूंगा भाई, जो वैल्यूज हमारे पास आएंगे, ठीक है, जो भी y है उनको एक साथ ले लेता हूं, y वालों को एक साथ ले लेता हूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए
x to the power y into y upon x plus x to the power y log x dy upon dx। ओके, इसको देखिए, इसको मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ ले लेता हूं, x टू द पावर y टू द पावर x, y टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन y और dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस इसको y टू द पावर x log y, इट विल बी इक्वल टू, अब इसको और इसको एक साथ ले लेता हूं, बाकी को मैं राइट साइड में लेकर के जाता हूं, dy अपॉन dx, लेट मी टेक इट आउट, ओके, x टू द पावर y log x प्लस यहां पे देखिए भाई, यहां पे y टू द पावर, यहां पे चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएगी, y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि dy अपॉन dx तो मैंने बाहर कर दिया, इट विल बी इक्वल टू y टू द पावर x log y और माइनस, यहां देखिए यहां भी वही चेंज हो जाएगा, x टू द पावर y माइनस 1 इंटू y, चेंज कर दिया भाई मैंने थोड़ा सा, अब क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू, देखिए यहां पर y टू द पावर x log y माइनस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू y डिवाइडेड बाय, यहां देखिए x टू द पावर y log x प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू x। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ इट एंड इट विल बी, साइन तो नेगेटिव होगा ना, देखिए इसको मैंने चेंज किया है लेफ्ट साइड से राइट साइड में, तो इसलिए ये प्लस साइन हो जाएगा, ओके, एंड इट विल बी द नेगेटिव साइन, और यहां पर भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, इट विल बी द नेगेटिव साइन। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द पॉजिटिव सिंबल, ओके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इट, मोस्ट इंपोर्टेंट, इट इज द वैल्यू ऑफ 5, most important solution, it will be very much helpful for you, very in the simplest way I have solved this question, my dear student, and it is my request to all of you, my dear student, you must have to like my videos, share my videos, press the bell icon so that my each and every video will reach to you as soon as possible, subscribe my channel, और देखना सभी अच्छे सॉल्यूशंस आपके पास पहुंचते रहेंगे, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।